हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का पार्ट 5। आज हम इसका पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है द कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सहकारी बैंक। और आप लोग हमारी स्टैटिक बैंकिंग सीरीज हमारे चैनल पर जाके स्टैटिक बैंकिंग बाय हिमानी बिस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस सीरीज का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग हमारे लास्ट पार्ट आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सीरीज जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में आएगी, डिफरेंट टॉपिक के साथ। आज हम इसका पार्ट 5 डिस्कस करेंगे और इसके जो प्रीवियस पार्ट्स हैं वो चैनल पे आ चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया हमारा बैंकिंग इन इंडिया का सब टॉपिक है। मेन टॉपिक है बैंकिंग इन इंडिया। इसके सब टॉपिक जो मैंने आपको डिस्कस किए थे अपने पार्ट 1 में, तो सब टॉपिक कौन सा है हमारा? कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया। तो cooperative banking in retail and commercial banking organized on a cooperative basis. Cooperative banking institution take deposits and lend money in most parts of the world. Cooperative banking, as discussed here, include retail banking carried out by credit unions, mutual saving banks, building societies and cooperatives, as well as commercial banking services provided by mutual organizations such as cooperative federation to cooperative businesses. Cooperative banks have more than one head like the RBI, the Registrar of Cooperative Societies and NABARD. जान लेते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स में यहाँ पे 3 टाइप है: प्राइमरी एग्रीकल्चर और अर्बन क्रेडिट सोसाइटीज, सेकंड है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, थर्ड है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। फर्स्ट है प्राइमरी एग्रीकल्चर और अर्बन क्रेडिट सोसाइटीज। द टर्म अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूसीबीज, though not formally defined, refer to primary cooperative banks located in urban and semi-urban areas. These banks till 1996 were allowed to lend money only for non-agriculture purpose. This distinction does not hold today. These banks were traditionally centered around communities, localities, workplace groups. These essentially lend to small borrowers and businesses. Today, their scope of operations has widened considerably. Second point is इसका primary urban cooperative banks are registered and governed by state governments under the respective cooperative societies act of the concerned state. Primary credit societies have to meet certain criteria in order to get license from RBI. The area of operations of primary cooperative banks is confined to metropolitan, urban or semi-urban centers and caters to the needs of small borrowers, including retail traders, small entrepreneurs, professionals and salaried classes. तो किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है प्राइमरी, जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट टाइप है कोऑपरेटिव बैंक का, वो कौन सा है? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, जिसमें एग्रीकल्चर और अर्बन दोनों कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट है District Central Cooperative Bank. District Central Cooperative Bank, the banking model consists of a district central bank for each district in every state of India, known with the name as a respective district central cooperative bank. The member and their elected directors who represents a multitude of professional cooperative bodies like milk union, urban cooperatives, rural cooperatives, agriculture and non-agriculture cooperatives and various others, in turn would elect the bank's president. These banks are collectively represented by state apex central cooperative bank for each state, and its act as the ultimate bank and apex body for the DCCBs under each state. It has been widely observed all over the country that the local politician who hold the sway over the cooperatives get elected the president post of the DCC bank, and president post would mean nurturing for their future political ambition. However, this trend, which has become a national phenomenon, carries its own advantage and disadvantages. तो ये सेकेंड इसका टाइप है, ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक।
नेक्स्ट इसका जो टाइप है वो क्या है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। द वर्ड स्टेट इन द नेम ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक डज नॉट मीन इज फुली ओन्ड बाय स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट. Besides the state government, other cooperative banks and districts cooperative banks are also shareholder. In India, state means the area of operations of the bank. For example, Kerala State Cooperative Bank Limited means it is apex bank within Kerala state. State cooperative banks are under the control of concerned state government also. कोऑपरेटिव बैंक्स विच वर्क एट द स्टेट लेवल आर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. तो हमने यहाँ पे 3 टाइप डिस्कस किए हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के. कौन कौन से? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. तो ये 3 टाइप हमने डिस्कस किए हैं किसके? कोऑपरेटिव बैंक्स के. तो अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं. जैसे मैं आपको हर टॉपिक के साथ कुछ एमसीक्यूज करवाती हूँ जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में बार बार, वो एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं इसी इंफॉर्मेशन या कोऑपरेटिव बैंक्स के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है इसी पे बेस है. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर विच एक्ट? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंकिंग लॉज एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965. नेक्स्ट है, कोऑपरेटिव बैंक्स विच वर्क एट अ मेट्रोपॉलिटन लेवल आर कॉल्ड एज? राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल बैंक्स रजिस्टर्ड अंडर द डैश आर कंसिडर्ड कोऑपरेटिव बैंक्स. राइट आंसर क्या है इसका? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव डैश लायबिलिटी. तो राइट आंसर क्या है? लिमिटेड. द मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव लिमिटेड लायबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द बॉडीज रेगुलेट्स द कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया? तो आरबीआई इसका सही आंसर हो जाएगा. आरबीआई रेगुलेट्स करती है द कोऑपरेटिव बैंक्स को इंडिया में. तो ये हमने डिस्कस किए हैं इसके एमसीक्यूज. तो यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट 5 है जिसमें हमने कोऑपरेटिव बैंक्स टॉपिक डिस्कस किया है ये कंप्लीट हुआ है. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल का नाम अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताएं. आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं. इन सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं. अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. तो बैंकिंग सीरीज में हमारी स्टैटिक बैंकिंग सीरीज में यूं ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अदर पार्ट्स के लिए. आज के लिए बस इतना ही. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.